ایک بار میں ایک سوال کریں جس سے سب کو موقع ملے. شروع جی آپ نے فرمایا کہ بھائی 7 دن میں قرآن شریف پڑھے زیادہ زیادہ. جو لوگ رمضان شریف کے لوگ 3 دن میں 4 دن پڑھ لیتے ہیں 5 دن میں وہ آپ بتاؤ آپ کی سمجھ میں کیا بات ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور بالکل نقطے پہ آپ نے میرے ذہن میں نہیں یہ بات. ان کا سوال یہ ہے کہ جب نبی نے کہا کہ کم سے کم 7 دن میں قرآن پورا کرو تو جو لوگ ایک دن میں جو کیا شبینہ کہلاتا ہے اور جو 3 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں وہ کس زمانے میں آئیں گے. وہ میں نے بتا دیا آپ کو جو نبی کی نہیں مانتا اور نبی میں نہیں ہے. وہ کتنے بڑے پیر بنتے رہے اپنے آپ کو, کتنے بڑے فقی بنتے رہے اپنے آپ کو, کتنے بڑے بزرگ بنے یا کتنے بڑے اب یہ سمجھیں کہ ہم بڑے جاننے والے ہیں, بڑے دیندار, بڑے متقی پرہیزگار ہیں. رسول اللہ کی میں سے نہیں ہے. کیا چھپ کر دوسری شادی کرنا ٹھیک ہے؟ کیونکہ سوال یہ ہے کیا چھپ کر دوسری شادی کرنا ٹھیک ہے. دیکھو جی بیوی کی اجازت کی ضرورت تو نہیں ہے دوسری شادی میں, لیکن چھپ کے شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ نبی نے فرمایا کہ نکاح کا عام اعلان کرو. اگر اعلان نہیں ہوا اور آپ نے چند لوگوں کے بیچ میں اپنے دوستوں کے بیچ میں حجاب و قبول کر لیا, حرام کاری ہے میرے نزدیک اس حدیث کی وجہ. آپ کو بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ اور رسول کی اجازت ہے آپ تو اس میں چھپانے کی تو بات ہی ختم ہو گئی. یہ جو ہم سبیل کرتے ہیں یا اللہ کے راہ میں کچھ طرح کام کرتے ہیں اور اسے گروپ بنا کر واٹس ایپ کے تھرو ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں تو یہ ریا کاری میں آتا. بڑا اچھا سوال ہے بھائی ان کا کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں وہ ہم نے گروپ بنا رکھا اور اس میں نیکی کو ڈالتے رہتے ہیں, یہ ریاکاری میں تو نہیں آتا. بالکل ریاکاری میں آئے گا بھائی, لیکن انٹینشن کے حساب سے فیصلہ ہوگا. اگر آپ کی نیت یہ ہے, کیونکہ بہت سے قرآن کی آیت یہ ہے کہ صدقہ چھپا کے بھی دو اور کھلے ہاتھوں بھی دو, نمائش کر کے بھی دو. اس میں یہی بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر دوسروں کو تلقین دلانے کے لیے آپ نمائش کر رہے ہیں اپنی نیکی کی تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو نیچا دکھانا یا کمپٹیشن کرنا کہ دیکھ میں نے تو 100 نفل پڑھے اس ہفتے میں, دیکھ میں نے تو آدھا قرآن ختم کر لیا, اور اسے واٹس ایپ پہ ڈال دیں تو دوسرا ذلیل سمجھے گا اپنے آپ کو اور حقیر سمجھے گا. یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے حالات اس کے ساتھ ہیں. کیونکہ ایک بار ایک صحابی کو حضور نے فرمایا جب اس نے پوچھا کہ میرے اوپر کیا کیا فرض ہے, وہ تیرے اوپر 5 نمازیں فرض, جو فرض نمازیں ہیں اور 30 مجھے فرض ہیں. پیسے ہو تو زکوٰۃ دیتے, پیسے تو ہے. اس نے حضور باقی نفل کے بارے میں تیری اپنی مرضی. تو اس نے کہا حضور بس میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا, اس سے کم بھی نہیں کروں گا. جب اٹھ کے چلا تو جو صحابہ میں بیٹھے تھے کہ جسے جنت نہیں دیکھنا ہو جا. تو اس لیے نفل عبادات جو ہیں وہ اگر آپ شو کر رہے ہیں تو اس میں شیطان کبھی بھی آپ کو بہکا سکتا ہے. میرے نزدیک بچنا چاہیے. ان کا سوال ہے کہ جو لوگ حاجی لکھتے ہیں بعد میں آنے کے بعد, کیا ان کا حاجی لکھنا ٹھیک ہے؟ بھائی طرح کی نمازی جو لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی نمازی کہنا چاہیے. یہ اللہ نے تو کوئی لقب اس طرح کا نہیں دیا, لیکن دنیا میں کیونکہ شوبازی بہت زیادہ ہے, وہ جاتی گجرے ڈال کے پوری بسیں ہیں اور آگے بھی پوری بسوں کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ اپنے نام کے ساتھ خود ہی حاجی لکھیں. دیکھو اگر لوگ آپ کو حاجی کہنے لگیں کوئی نہیں, لیکن آپ خود سے نہ پوچھو گے. حج تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو مما ہے بند ہے لکھا ہوا کہ قبول ہوا نہیں ہوا. نوٹ تو جب نوٹ ہے نا جب بینک والے قبول کر لیں, ورنہ ردی کا ٹکڑا ہے. حج تو جب ہے جب اللہ کے یہاں رجسٹر میں لکھا جائے گا بھائی یہ حاجی ہے, ورنہ آپ کا حج بیکار, آپ کا سفر بیکار. یہ بھی حضور نے فرمایا اس بات کو کہ آخری زمانے میں لوگ حج کو پکنک کی طرح کریں گے, تفریح کی طرح. کیا پتہ اللہ نے آپ کے حج جو ہے وہ تفریح میں لکھ دیا ہوگا, حج ہو ہی نا آپ کا. آپ نے اردو والے پہ کھانے کو اردو والے پہ ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے کسی لنگر کا کھانا کھایا ہے گردوارے میں, کیا لنگر کا کھانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی. آپ یہ دیکھو کہ جس محبت سے انہوں نے کھانا کھلایا نا, آپ نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی شاید, آپ یقین کریں ہمارے یہاں ایسا اخلاق نہیں. جس محبت سے انہوں نے کھانا کھلایا نا, خود کھڑے ہو گئے جو وہاں کے مین لوگ تھے. ہاں, تو میں نے انہی سے مطلب ہے تو یہ
नबियों की सुन्नत खाना खिलाना, बुजुर्गों की सुन्नत, लेकिन अखलाक मैंने उन्हीं से लिया कि मैं खुद खड़ा हो जाता हूँ इसीलिए यहाँ जब हमारा खाना चलता है, ये मेहमान नवाजी में आता है। तो बिल्कुल खाना खाने में कोई हरज नहीं है। जिस तरह से आप मेहमान नवाजी में किसी के यहाँ जाते हैं, किसी हिंदू के यहाँ, वो आपको चाय पिलाता है या सोडा पिलाता है या कोई और चीज़ खाने की देता है, आप खाते हो नहीं खाते हो? बिल्कुल वो मेहमान नवाजी के तौर पे उन्होंने हमें लंगर खिलाया, और यहाँ भी हम मेहमान नवाजी करते हैं। मैं ये माइक पे शायद पहले ही बता चुका, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस मरकज़ में एक पैसा ज़कात का नहीं लिया। जो मेरे भाइयों की और मेरे बच्चों की पाक कमाई है, मेहनत की, वो लगता है। कोई डोनेशन किसी का नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई ज़कात का पैसा अपना लगता है। क्योंकि मैं खुद इसीलिए आप लोगों के साथ बैठता हूँ कि आपका जहन खुल जाए, क्योंकि कोई अपनी ज़कात खुद नहीं खा सकता। ये मुझे वजाहत इसलिए करनी पड़े, हालांकि मेरे साथियों को सबको पता है, क्योंकि नए नए लोग भी जुड़ते रहते हैं। तो इसलिए बेफिक्र होकर हमारा एक दस्तरखान सबका है, आप किसी को भी ला सकते हो। आप यहाँ मेज़बान हो, मेहमान नहीं हो, आप अपने साथ मेहमानों को ला सकते हो। पूरी खुली इजाज़त है। जब हम भीड़ बढ़ती हुई देखेंगे, हम 10 देर उतरवा दिया करेंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने हजत। बयान के वक्त हम उंगली क्यों डालते हैं और इनका सवाल ये है, अजान के वक्त कानों में उंगली क्यों डालते हैं और दाई तरफ बाई तरफ हैया अल्लाह सलाह मुड़ के क्यों कहते हैं? भाई कानों में उंगली इसलिए क्योंकि उस टाइम लाउड स्पीकर नहीं थे और कानों में उंगली डालने से आवाज़ दूर तक जाती थी। इस वजह से जो है वो कानों में उंगली डाली जाती थी। उन्हीं साहबा की सुन्नत को आज बुजुर्गान दीन ने जारी रखा हुआ है। हालांकि अब कानों में उंगली डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, वो जो हरकतें कर गए, उनकी हरकतें करने से शायद अल्लाह के पसंदीदा बंदे हम बन जाए। दूसरा सवाल आपका, इधर उधर हैया सलाह क्यों कहा जाता है? वो इसी वजह से कि दूर तक आवाज़ जाए। मान लो सीधे तो आपने अजान नहीं दी और आओ फला की तरफ, आओ सलात की तरफ, ये चारों तरफ मतलब फैल जाए अजान की। एक मनादी है अजान कि आप बुला रहे हैं लोगों को कि आओ नमाज की तरफ, आओ फला की तरफ, इसलिए इधर उधर घूमा जाता है। हाँ जी, ये कहा जाता है कि मरने के बाद कब्र के अंदर जन्नती की जो अच्छा होता है उसके लिए जन्नती की बोल दी जाती है, जो बुरा होता है उसके लिए जान। और ये भी कहा जाता है कि मरने के बाद, मौत के बाद रूहें लीन और सिज्जीन में इकट्ठी हो गई हैं। तो मौत के बाद क्या कॉन्सेप्ट? बड़ा अच्छा सवाल है भाई इनका। कब्र का जो मामला है उसमें कहते हैं कि हिसाब किताब के बाद ये भी हदीस है कि ये तो कब्र जो है वो दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है, जन्नत के बागों में से एक बाग है, खिड़की खोल दी जाती है, सब हदीसें हैं। ये आप यूँ समझो कि हमारी डेथ के बाद जो कब्र का पीरियड शुरू होता है ना, उसे ही आलम बरज़ख कहलाता है। वही उसी में लीन और सिज्जीन आता है। ये तो आपको मिट्टी का एक ढेर जो दिख रहा है यहाँ, ये कब्र नहीं है। असल कब्र आपकी आलम बरज़ख है, जो आड़ की ज़िंदगी आपकी शुरू होती है। उसी में आपको जो सिज्जीन और लीन कुरान बयान करता है कि बुरी रूहें और अच्छी रूहें, वही कॉन्सेप्ट है कि जो बुरी रूहें हैं उन्हें दोज़ख की तपिश आनी शुरू हो जाती है, और जो अच्छी रूहें हैं उन्हें जन्नत के बागों की खुशबू और हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये खबर, इस खबर को आप खबर ना समझो, बल्कि जो लीन और सिज्जीन है वो खबर का हिस्सा है। हाँ जी, तलाक अल्लाह को नापसंद है तो हलाल क्यों है? तलाक, इनका सवाल ये है कि तलाक जब अल्लाह को नापसंद है तो हलाल क्यों है? भाई इसीलिए अल्लाह ने हलाल रखी नापसंदीदा होने के बावजूद भी कि मान लो कोई मर्द फंस जाए, किसी कोई लड़की कोई दिखा दी जाए, उसे कोई दूसरी दे दी जाए तो वो उसे तलाक दे दे। मान लो किसी औरत को बच्चे ना हो रहे हों तो वो उसे तलाक दे सकता है, अगर वो नहीं मानती दूसरी शादी को, एक्सेप्ट नहीं करती उसकी। इसी तरह से मान लो बद दिमाग हो, बद चलन हो औरत, तो वो छोड़ सके। इसी तरह औरतों का भी मामला है कि औरत जो है अगर किसी नामर्द के यहाँ फंस जाए तो वो तलाक ले सके, खुला ले सके, दबाव डाल के तलाक ली जा सकती है। इसी तरह से उसे अपना जो मर्द है वो कमाऊ ना हो, मारपीट करता हो, जुल्म करता हो, तो सारी उम्र वो औरत उसके नीचे ना फंसी रहे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नापसंदीदा होने के बावजूद तलाक को हलाल रखा। हालांकि अल्लाह को पसंद नहीं है, पसंद इसीलिए नहीं है कि लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। अल्लाह को पता था मिसयूज़ करेंगे, इसलिए पसंद नहीं है, वरना हलाल है। हम क्या माँ बाप के कहने पर तलाक दे सकते हैं? इनका सवाल है क्या माँ बाप के कहने पर तलाक दे सकते हैं? भाई मेरे नज़दीक तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर आपकी बीवी बच्चलन है या वो आपका कहना नहीं मानती, जो आप उसे रोकते हो बुराई से, तो आप, कुरान ये कहता है कि अगर ये बेहयाई करें तो इनके बिस्तर अलग कर दो। उसके बाद ये कहा कि एक मर्द में से कोई इंसाफ वाला और एक कोई औरतों में से इंसाफ वाला बैठे,
लड़का लड़की वालों से भी सुलह कराने की कोशिश करें, उसके बाद का तब भी ना बात बने तो फिर हल्की फुल्की मार दे सकते हो। मतलब मार भी ऐसी जैसे कान पकड़ के बच्चों को हम भी करते हैं, ये नहीं कि आप चेहरे पे मारो या उसके गधे घोड़ों की तरह उसमें निशान डाल दो जिस्म पे, उसके जानवरों की तरह मारो। आखिर में कहा कि अगर फिर भी बात नहीं बनती तो सेपरेशन, एकदम तलाक माँ बाप के कहने पे देना मेरे नज़दीक तो बिल्कुल गुनाह की बात होगी, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने वैसे तो माँ बाप के हक बयान किए अपने हक के बाद 5 जगह, लेकिन एक जगह ये भी कहा कि अगर ये मेरे शरीयत के मामले में कहीं तुम्हें हुक्म दे तो वहाँ तुमने इनकी नहीं माननी। तो आपने अल्लाह और रसूल के नाम पे जिस औरत को अपने लिए हलाल किया है, आप अपने माँ बाप कहने को तो तलाक दे रहे। मिसाल दी जाती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया था कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। भाई वो नबी थे, नबियों की तरबियत होती थी, अल्लाह के इशारे आते थे नबियों को वही के ज़रिए, उन्हें अल्लाह ने समझाया होगा कि औरत ठीक नहीं है घराने के लिए, या कि नबी होने वाला है, इससे नस्लें चलने वाली है नबियों की, तो तब वो ये बात करके गए थे वहाँ दरवाजे पे। तो उनकी मिसाल किस तरह आम आदमी ले लेगा? तो इसलिए मेरे नज़दीक अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी वाकई बस चलाना काम नहीं चलेगा तो आप अपने सेंस के हिसाब से तलाक दो, माँ बाप के कहने पर आपने तलाक नहीं देनी। क्योंकि एक हदीस भी खड़ी है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह की इताअत के आगे किसी मखलूक की इताअत आपने नहीं करनी। आप बताओ। इनका सवाल यह है कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी हाजरा अलैहिस्सलाम, उन्हें अलैहिस्सलाम क्यों कहा जाता है? भाई ये एक लक़ब है इज्जत देने का। आप मतलब नबियों के साथ जुड़ा हुआ था, और नबियों की बीवी जो हैं कुरान में सारा अलैहिस्सलाम को अहले बैत कहा है। तो जो भी अहले बैत या अल्लाह की नज़र में नबियों की बीवी हैं उनके इज्जत का नाम लेना आपके लिए मतलब वाजिब है आपके लिए। आप कुछ पूछे तो वहाँ खाना दिया जाए, बहुत से आदमी बसों में भी उनका सवाल ये है, बसों में मिठाई बांटते हैं लोग, क्या वो भी खा सकते हैं? बिल्कुल। अगर उसमें कोई आपको देखो, अगर उन्होंने कोई मूर्ति साथ में ली हुई है, वो प्रसाद दे रहा है आपको, वो तो आपके लिए हराम है। लेकिन अगर किसी के बेटा हुआ या कोई और खुशी का मामला है और वो मिठाई खिला रहे हैं आपको, बिल्कुल आपके लिए जाएगी, वो प्रसाद है भाई, मैं समझ गया आप लोग, वो हराम है आपके लिए। वो हराम है आपके लिए, हराम है। इनके सवाल ये अल्लाह के नाम का खा सकें, गैरुल्लाह के नाम का नहीं खा सकते। कोई मैं इन्हें जवाब दे रहा हूँ कि अगर वो किसी मूर्ति के आगे ला के पूरी मिठाई और उसे घुमा के बत्ती करके और फिर इनके आगे ला रहे हैं तो वो हराम है इनके लिए, क्योंकि वो गैरुल्लाह का नाम लिया गया उसका। जी, क्या दरूद इब्राहिम पढ़ने के सलाम पढ़ने का हक अदा होगा? इनका सवाल यह है, दरूद इब्राहिम जो हम नमाज में पढ़ते हैं क्या वो पढ़ लेने से सलाम का हक अदा होगा? क्योंकि कुरान में सूरह अहज़ाब आयत 56 में अल्लाह ने कहा कि लोगों, अल्लाह उसके रसूल, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं, तुम भी दुरूद और सलाम भेजो। तो उसमें सलाम का हुक्म है, क्या वो सलाम का हक अदा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं अदा होगा। हालांकि दुरूद इब्राहिम ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया हुआ है, लेकिन नमाज में पढ़ने का हुक्म, सलाम का जो हुक्म है पढ़ने का, वो कुरान का हुक्म है। तभी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यहाँ जो हम 5 मिनट में पढ़ता हूँ, अक्सर आपने देखा होगा कि आप लोग आगे बैठ जाते हो, मैं पढ़ता रहता हूँ। हफ्ते में एक दिन कम से कम ये 5-10 मिनट सलाम ज़रूर पढ़ा करो नबी पे, और नबी का ही बताया सलाम। अत्तहियात में जो आप अय्युहन नबी अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी कहते हो, वो सलाम ही पढ़ना है। तो अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी ज़रूर पढ़ा करो दिन में 10-5 दफ़ा या एक आध तस्वीर। वो सलाम का हुक्म पूरा हुआ जो कुरान में अल्लाह ने दिया। और कम से कम अगर आपको दिनों में याद नहीं रहता तो यहाँ आप ज़रूर बैठा करो 5-10 मिनट, वो कि हम सलाम पढ़ रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, गुनाह की नियत हो और गुनाह करने का मौका ना मिला हो या गुनाह ना किया हो तो क्या इस पर जो है मतलब अज़ाब होगा, गुनाह लिखा जाएगा? इनका सवाल ये है, गुनाह की नियत हो, गुनाह करने का मौका ना मिला हो तो क्या इस पर पकड़ होगी? देखो जी, नबी ने तो फरमाया कि इस उम्मत की खुसूसियत में बात है कि इनके वसवसों पे पकड़नी है, इनकी सोच पे पकड़नी है, जब तक ये अमल ना करो। क्योंकि जो हमारे फरिश्ते बैठे हैं ना, ये नियत नहीं देख रहे, ये अमल देख रहे हैं, अमल लिख लेते हैं। अगर उसे मौका नहीं भी मिला तो अल्लाह ने नहीं चाहा कि इसे ये बुरा काम करे, तो अल्लाह ने हिफाजत करी। अब मेरे साथ, मैं ईमान से कह रहा आपको, ऐसे ऐसे वाकई एक नहीं हुआ, कई हुए।
जवानी के दिनों में मतलब ऐसी मेरी हिफाजत की है अल्लाह ने कि अगर मैं आपको बता दूँ आपके रोंग के खड़े होंगे, मतलब इस तरह से अल्लाह ने मेरी हिफाजत। हाँ जी, आप बताओ पीछे। नबी अलैहिस्सलाम को मासूम बताया गया, गुनाहों से पाक सूरह फतह में भी जिक्र किया गया और आज पिछले हुआ कि ये जो अगले गुनाह और पिछले गुनाह है, अगले और पिछले गुनाह माफ कर दीजिए, ये कौन से अगले गुनाह और पिछले गुनाह का जो तज़किरा किया गया किताब में भी। इनका सवाल बड़ा अच्छा है। ये कहते हैं कि अंबिया मासूम हैं, इनके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। असल में जब वही उतरी ना, उस टाइम वही जो उतरी वो जिंदा नबियों को उतरी, उस टाइम जिंदगी उनकी थी और आगे भी उनके पास साल 2 साल, दिन 2 दिन या हफ्ता 2 हफ्ता थे। तो अल्लाह ने कहा कि जो पीछे गुनाह कर चुके, गलती से इनसे कोई भी मामला हुआ हो, लर्जिश हुई हो अल्लाह की किसी भी हक में, तो वो इनकी नेकियों की वजह से माफ़ कर देंगे। और अगर ये ज़िंदगी में आगे भी इनसे कोई लर्जिश होनी होगी, मैंने वो भी माफ़ कर दिया। देखो आप ये देखो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानों पे है, उसे हमारा फ्यूचर जो आज हम जिंदा है वो भी दिख रहा, फ्यूचर भी दिख रहा, आने वाला कल भी और पिछला कल भी। जब अल्लाह माफ़ करता है ना किसी को, तो वो तीनों उसकी ज़िंदगी देख के माफ़ करता है। इसने पीछे क्या किया, आज क्या कर रहा, आगे जो कुरान में सहाबा इकराम के बारे में आया ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं इनसे राज़ी हुआ, तो अल्लाह उनकी सारी ज़िंदगी देख के राज़ी हुआ। हालांकि वो तो जिंदा थे, जिहाद कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं इनसे हमेशा के लिए राज़ी हुआ। उनकी पिछली ज़िंदगी देख के, आज की ज़िंदगी देख के और आगे का फ्यूचर भी देख के। हालांकि बाद में जंगें भी हुई, आपस में भी लड़े सहाबा, लेकिन तमाम गुनाह उनके अल्लाह ने माफ़ कर दिए, उनकी नेकी हुई। क्या इस्लाम में उंगलियां चाटना मना है? इनका सवाल यह क्या इस्लाम में उंगली चाटना मना है? भाई इस्लाम में उंगली चाटना सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई इस बात, और ये कहा कि ये मतलब हाजमे के लिए बहुत बढ़िया है, ये मेडिकल साइंस से भी साबित है। इनका सवाल यह क्या 5 नमाजें रात में इकट्ठी एक साथ अदा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। आप 3 वक्त में तो अदा कर सकते हो कि आप फजीर पढ़ के गए और आप बहुत ज़्यादा बिजी हो या आपकी ड्यूटी ऐसी है कि आप नहीं पढ़ सकते, तो जोर में जब आपको टाइम मिला खाने का, तो उसमें आपने 4 फर्ज जोर और 4 असर मिला के पढ़ दिए। इसी तरह जब आप घर आए ईशा में सारा काम वाम निपटा के, तो आते ही सबसे पहले आपने 3 मगरिब के और 4 फर्ज ईशा के और फिर बाकी वितर वगैरह, ये अगर आप पढ़ देंगे तो आपकी नमाज़ें टाइम पे होंगी। क्योंकि नबी ने मदीने में बिना किसी उज़र के मिला के नमाज़ें पढ़ी हैं, जोर और असर पूरा टाइम एक कर दिया, असर से जोर तक का। इस तरह मगरिब और ईशा, अगर आप बिल्कुल मगरिब से थोड़ा पहले भी 20-25 मिनट पहले भी असर और जोर मिला के पढ़ देंगे तो आपकी नमाज कज़ा नहीं हुई, अदा हुई। ये आप चाहे बुखारी मुस्लिम में तले ऊपर 10 हदीसें हैं इससे मुताल्लिक। जब पूछा गया सहाबा से कि हुजूर ने ऐसा क्यों किया, कि जमा क्यों कराई नमाज सहाबा इकराम को, तो उन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शायद मरवी है मामला, कि जब उनसे पूछा गया कि हुजूर ने इस तरह मदीने में बिना किसी उज़र यानी बारिश या कोई बीमारी या कोई सफ़र, उसके बिना नमाजें मिला के क्यों पढ़वाई, कि उम्मत की आसानी के लिए। तो कभी ऐसा कोई मौका, वैसे तो कुरान हुक्म देता है सूरह निसा आयत नंबर 102 कि ऐ मोमिनो तुम्हारे ऊपर मुकर्रर वक्तों पर नमाज पढ़ दें, लेकिन वक्त किसने बताया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वैसे तो 5 वक्त पढ़नी चाहिए अपने, लेकिन किसी की ऐसी मजबूरी हो, कोई डॉक्टर है ऑपरेशन कर रहा, किसी की बड़ी कंपनी है, किसी की ऐसी फैक्ट्री है कि वो छोड़ नहीं सकता, तो मिला के जोर और असर मगरिब और ईशा पढ़ सकता है। लेकिन 5 नमाज़ें एक साथ पढ़ना, ये तो बिल्कुल ही दीन की मजाक उड़ाने वाली बात है।